السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا مزید منہ زور ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 46 اموات ہو گئیں، جبکہ ایک ہی دن میں 3097 نئے کیسوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاک بحریہ میں اہم ترقیاں دے دی گئیں۔ 3 کموڈرز کو ریئر ایڈمرل بنا دیا گیا۔ ترقی پانے والے افسران پاکستان نیوی وار کالج لاہور اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہیں۔ نیب سیاستدان کو دبانے کا ذریعہ ہے۔ براڈ شیٹ کو نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں ملا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں نیب کو کس نے اختیار دیا، عوام کا 7 ارب ایک کمپنی کے حوالے کر دے۔ جماعت اسلامی کراچی کا کل سے دھرنے دینے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے، اسے درست گنا جائے۔ کراچی پیکج کا شہریوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 16 جنوری سے پیٹرول کی قیمت میں بھاری اضافے کی سفارش کر دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی۔ کراچی سے بھارتی خفیہ ایجنسی کا حمایت یافتہ دہشت گرد گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار دہشت گرد علیحدگی پسند تحریک کا سرگرم کارکن ہے۔ بولنے اور سننے سے محروم 15 سالہ ثنا نے اسکواش میں جھنڈے گاڑ دیے۔ ثنا بہادر نے بین الاقوامی مقابلوں میں بھی حصہ لینے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 6,81,328 تک جا پہنچی۔ ایئر کینیڈا نے 1700 سے زائد ملازمین کو برطرف کر دیا۔ اونٹیریو میں کورونا وائرس شدت اختیار کر گیا۔ حکومت کی جانب سے اسٹے ایٹ ہوم آرڈر جاری۔ اہم شعبوں کو کام کی اجازت ہوگی۔ کینیڈا میں کورونا وائرس ویکسین کی دوسری خوراک میں تاخیر کا خدشہ۔ ویکسین پینل نے خبردار کر دیا، دوسری خوراک کی فراہمی میں 6 ہفتوں کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ مینگ وانزونگ کے شوہر اور بچوں کو کینیڈا سفر کی اجازت۔ فیصلہ کینیڈین قوانین کی روشنی میں کیا گیا۔ ہواوے کی CFO کو دسمبر 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ٹرمپ کا اسنیپ چیٹ اکاؤنٹ بھی مستقل طور پر بند۔ اکاؤنٹ نفرت انگیز بیان، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور تشدد پر اکسانے کی وجوہات پر بند کیا گیا۔ گزشتہ روز یوٹیوب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چینل معطل کر دیا تھا۔ صدر کی تبدیلی پر ہنگامہ آرائی کا خدشہ، امریکی فوج کو تیار رہنے کا پیغام موصول۔ امریکہ میں حفاظتی انتظامات سخت۔ افواج جو بائیڈن کو اپنا اگلا سپریم کمانڈر تسلیم کر چکی ہیں۔ امریکہ کی عسکری قیادت کا افواج کے نام خط، آئین کی پاسداری پر زور۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کی منظوری دے دی۔ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی منظوری، 10 ریپبلکن ارکان کی حمایت۔ ٹرمپ دوسرے مواخذے کا سامنا کرنے والے پہلے امریکی صدر بن گئے۔ امریکہ میں چینی کپاس، ٹماٹر سے بنی مصنوعات پر پابندی لگا دی۔ کسی بھی طرح کی جبری مشقت برداشت نہیں کی جائے گی۔ امریکی محکمہ داخلہ سیکیورٹی کا امپورٹرز کو خط۔ گلوکارہ شکیرا نے اپنے تمام گیت فروخت کر دیے۔ شکیرا کے بہترین گانوں میں 2010 میں ریلیز ہونے والا واقع واقع سب سے نمایاں ہے۔ کم از کم 145 گانے برطانوی میوزک فرم کو بیچ دیے۔ پاکستانی نژاد ہالی ووڈ اداکار رز احمد نے خاموشی سے شادی کر لی۔ ایک شو کے دوران شادی کی تصدیق کی۔ رز احمد نے بتایا کہ ان کی شادی کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ دنیا میں کورونا وائرس سے کل اموات 19,88,483 ہو گئیں۔ چین میں نئے کورونا مریضوں کی تصدیق کے بعد 5 لاکھ کی آبادی کو قرنطینہ کر دیا۔ WHO کے ماہرین کی ٹیم ووہان پہنچ گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 46 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 10,818 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,11,921 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,097 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,97,292،
सिंध में 2,30,718, खैबर पख्तूनख्वा में 62,377, बलोचिस्तान में 18,488, गिलगित बल्तिस्तान में 4,882, इस्लामाबाद में 39,624, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,540 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 72,43,650 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,574 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,67,234 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,410 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 46 अफराद जा बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 10,818 हो गई। पंजाब में 4,348, सिंध में 3,744, खैबर पख्तूनख्वा में 1,752, इस्लामाबाद में 449, बलोचिस्तान में 188, गिलगित बल्तिस्तान में 101 और आज़ाद कश्मीर में 236 मरीज जान से हाथ धो बैठे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के 3 कमोडोर्स को रियल एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की पाने वालों में कमोडोर जावेद इकबाल, कमोडोर मोहम्मद सुहेल अरशद और कमोडोर सलमान इलियास शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया के 3 कमोडोर्स को रियल एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में कमोडोर जावेद इकबाल, कमोडोर मोहम्मद सुहेल अरशद और कमोडोर सलमान इलियास शामिल हैं। रियर एडमिरल जावेद इकबाल और रियर एडमिरल मोहम्मद सुहेल अरशद ने 1989, जबकि रियर एडमिरल सलमान इलियास ने 1990 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। तरक्की पाने वाले अफसरान पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिगुल तहसील हैं। तर्जुमान के मुताबिक अफसरान पाक बहरिया में कमांड और स्टाफ की मुतादिद अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दे चुके हैं। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों में लिखा नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। जिन लोगों ने मुल्क की दौलत लूटी उन्हें NRO दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब सियासतदान को दबाने का जरिया है। नैब दूसरों को कटघरे में खड़ा करता है, आज खुद खड़ा है। ब्रॉडशीट को नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला। ज़राए इब्लाग़-ए-आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि नैब को किसने इख्तियार दिया आवाम का 7 अरब एक कंपनी के हवाले कर दे। बरतानवी अदालत का फैसला पब्लिक क्यों नहीं किया जाता। आला अदलिया इस मामले पर अज़खुद नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों में लिखा नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। जिन लोगों ने मुल्क की दौलत लूटी उन्हें NRO दिया गया। जिनके खिलाफ कुछ न मिला उन्हें नैब अदालतों में घसीट रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मूडीज की क्रेडिट देने की रिपोर्ट हर हफ्ते बनती है। मूडीज की रिपोर्ट शादियाने बजाने के लिए बनती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टील गुज़िश्ता 30 साल से निजकारी के दहाने पर है। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। स्टील मिल जो है ये पिछले 30 साल से निजकारी की लिस्ट पर है। 1990 में शामिल हुआ था। स्टील मिल जो है उसके मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने कल से शहर भर में धरने देने का ऐलान करते हुए कहा है कि सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी और MQM कराची दुश्मनी का सबूत पेश कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इदारा नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी और MQM कराची दुश्मनी का सबूत दे रही हैं। PSP के लोग चाइना कटिंग में मुलविस रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी कराची को सूबे का हिस्सा ही नहीं समझती। न मुलाजमतें दी जा रही हैं और न इदारे ठीक किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मुतालबा किया कि कराची की आबादी 3 करोड़ है, इसे दुरुस्त गिना जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ेह किया कि कल से तहरीक हुकूक कराची के तहत एहतजाज का आगाज़ किया जा रहा है। कल नर्सरी स्टॉप पर धरना होगा। 16 जनवरी को 5 स्टार चौरंगी, 17 जनवरी को अलादीन पार्क, 30 जनवरी को करीमाबाद, जबकि 28 जनवरी को शहर के 50 के करीब मकामात पर धरने दिए जाएंगे। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश कर दी। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हो सकती हैं, जिसकी सिफारिशात ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हो सकती हैं, जिसकी सिफारिशात ओगरा ने
पेट्रोलियम डिवीजन को भेजती हैं। ज़राए का कहना है कि ओगरा की सिफारिशात के तहत पेट्रोल 11 रुपये 95 पैसे और डीजल भी 9 रुपये 57 पैसे फी लीटर तक महंगा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 30 रुपये फी लीटर लीवी के हिसाब से किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। पुलिस और हसास इदारों के एहलकारों ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी का हिमायत याफ्ता खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कराची के इलाके इतिहाद टाउन में पुलिस और हसास इदारों के एहलकारों ने खुफिया इत्तलात की रोशनी में कार्रवाई की और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और हसास इदारों के एहलकारों ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी का हिमायत याफ्ता खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम मंसूर उर्फ अनिल है। उसने 12 से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल कर रखी है और उसका ताल्लुक अलहदगी पसंद तहरीक से है। मंसूर सी पैक मंसूबों, हसास तनसीबात और गैस पाइपलाइन पर हमलों समेत दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस है। इसके अलावा मुलजिम हसास तनसीबात की रेकी और धमाका खेज मवाद की तरसील भी करता था। गिरफ्तार मुलजिम से 1 किलो धमाका खेज मवाद, बारूदी सुरंग और असलहा बरामद हुआ है। कौमी स्क्वाश चैंपियन सना बहादुर का कहना है कि कौमी सतह पर कामयाबी के बाद वो बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी आगे बढ़कर अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 15 साला सना बहादुर जो क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समात की सलाहियत से महरूम है, लेकिन स्क्वाश में उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। स्क्वाश की दुनिया में हाशिम खान से जान शेर खान तक कई ऐसे हीरोज गुजरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का परचम लहराया। वक्त के साथ साथ खवातीन ने भी स्क्वाश में दिलचस्पी ली और अब कई खवातीन खिलाड़ी पेशावर के स्क्वाश कोर्ट में खेलती नजर आती हैं। इन खिलाड़ियों में पेशावर से ताल्लुक रखने वाली सना बहादुर शामिल हैं। 15 साला सना बहादुर जो बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम हैं, लेकिन स्क्वाश में उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। सना बलोच के साथ उनके भाई सैफुल्ला बहादुर भी अंडर 13 के खिलाड़ी हैं और ये भी बोलने और सुनने की सलाहियत नहीं रखते। दोनों बहन भाई कमर जमान और जान शेर खान की तरह आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने की उम्मीद रखते हैं। सना बहादुर कौमी सतह पर अंडर 15 की चैंपियन हैं। उन्होंने कौमी सतह पर 5 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। अंडर 23 गेम्स में 2, बैनुल सूबाई गेम्स और कायदे आजम गेम्स में भी सोने के तमगे जीत चुकी हैं। सना बहादुर के वालिद बहादुर खान का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को तालीम देने के लिए खुसूसी बच्चों के स्कूल में दाखिल कराया और साथ ही कोशिश की कि वो खेल में भी खुद शामिल करें। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।